So hello guys, the topic for this video would be muscle spindle and the stretch reflex, and also we'll be talking about the Golgi tendon organ and its associated reflex, which is the inverse stretch reflex. So we'll be discussing the differences between the muscle spindle and the Golgi tendon organ, differences between stretch reflex, inverse stretch reflex, and yes. So now let's get started. So firstly, we have to talk about the muscle spindle. So structure of a muscle spindle, if I talk about, so see, we are having two types of muscle fibers. So the muscle fibers, they can be of two types. They can be the extrafusal fibers and they can be the intrafusal fibers. So extrafusal fibers का function क्या है? These are the normal muscle fibers which we have studied till now. Those which are involved in the contractile response, right? So these are involved in contraction. इनका function क्या है? Extrafusal fibers का contraction इनका role है. जो अभी तक हम normally पढ़ते हैं कि sarcomere is the basic unit of muscle contraction, वो सब कहाँ है? Extrafusal fibers हमने structure आज तक पढ़ा है. The new thing we have to learn about is the intrafusal fibers. What is the role of intrafusal fibers? So they make up the component of muscle spindle. ये किसके अंदर present होते हैं? So muscle spindle के अंदर intrafusal fibers present होते हैं और इनका function क्या है? They act as a receptor. And receptor for what? They act as a receptor for muscle length, or you can say they act as a stretchometer. They act as a stretchometer. ठीक है, तो सपोज एक हमने मसल लिया, ये मसल बेली है और इस मसल के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स अरेंज्ड होंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मली होते हैं. अब ये बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स के बीच में यू विल बी हैविंग सम इंट्राफ्यूजल फाइबर्स. सो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, दीज आर प्रेजेंट इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट. ये कनेक्टिव टिश्यू शीट था आउटर जो मैंने बनाई. Now inside this connective tissue sheet you would be having the intrafusal fibers. ठीक है, remember that these intrafusal fibers, these lie in parallel with the extrafusal fibers. ये extrafusal fibers हैं ये, और ये intrafusal fiber की connective sheet है. ठीक है, this is the connective sheet of the intrafusal fibers and these lie in parallel. अब इस connective tissue sheet के अंदर दो टाइप के fibers होंगे. Number one fibers, these are the nuclear chain fibers. मतलब एक ऐसा सेल होगा और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. These are the nuclear chain fibers. And another one is the nuclear bag fiber. Nuclear bag fiber यहाँ बना रही हूँ. So there would be fibers like this whose nuclei would be concentrated in the central portion. ठीक है, central portion में nuclei concentrated होंगे. These are the nuclear bag fibers. And also the other type of intrafusal fibers are the nuclear chain fibers, जिसके अंदर nuclei in chain lie करेंगे. Now let us see the structure. Let us discuss them. So look here, muscle spindles. These can act as stretchometers. ये क्या है? Stretchometers हैं. Each muscle spindle contains 8 to 12 muscle fibers which are enclosed in a connective tissue capsule called as intrafusal fibers. Now these intrafusal fibers, they lie in parallel to the extrafusal fibers. Intrafusal fibers दो टाइप के होते हैं, the nuclear bag fiber and the nuclear chain fiber. I have also drawn here, these are the nuclear bag fibers. These both are nuclear bag fibers and this is the nuclear chain fiber. The nuclear bag fiber can further be of two types. They can be the nuclear bag dynamic fibers or they can be the nuclear bag static fibers. Nuclear bag dynamic fibers का क्या function होगा? ये dynamic responses predict करेंगे, जैसे change in rate of change of muscle length, ठीक है, या velocity of change in muscle length. जबकि nuclear bag static and nuclear chain सिर्फ static होते हैं, ठीक है. So nuclear bag static along with nuclear chain static, they both are concerned with the sensation or with the reception of the muscle length in under static conditions. जब movement नहीं हो रही होगी तब कौन as a receptor act करेंगे? nuclear bag static fibers and nuclear chain fibers. ठीक है, अब nuclear bag fibers की जो now listen, muscle spindle is the only receptor which is having also a efferent supply. ठीक है, हमें पता है
So we know that the normally to extrafusal fiber, what is the efferent supply? तो extrafusal फाइबर्स जो है उनकी इफरेंट सप्लाई क्या होगी? अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि वेंट्रल हॉर्न से आ रहा होता है, वो इसकी मोटर सप्लाई होगी। लेकिन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की मोटर सप्लाई क्या होगी? These would be the A gamma fibers. These are the A gamma fibers. This is according to the Erlanger and Gasser's classification. So for that you can refer to my link, my another video on the types of muscle fibers. So A alpha extrafusal को motor supply देंगे और A gamma fibers intrafusal muscle fiber को motor supply देंगे। Intrafusal क्या act कर रहे थे? Receptor. So this is the muscle spindle is the only receptor which is having a efferent supply, ठीक है। इवन गोल्गी टेंडन ऑर्गन आगे हम पढ़ेंगे, उसके पास भी इफरेंट सप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब एफरेंट सप्लाई, क्योंकि ये रिसेप्टर है तो एफरेंट सप्लाई तो होगी, इसके थ्रू जा रहे होंगे। सो एफरेंट इनर्वेशन किसके थ्रू होगी? जो 1A fibers and 2 fibers. Now what are these? These are the fibers which are based on the numerical classification. Numerical classification of nerve fibers के बेसिस पे हमने इन्हें नंबरिंग की है। और 1A फाइबर्स की जो एंडिंग होती है, ये कैसी होती है? एन्यूलोस्पाइरल एंडिंग होती है। एन्यूलोस्पाइरल एंडिंग, एन्यूलोस्पाइरल एंडिंग का मतलब ऐसे राउंड राउंड एंडिंग, ठीक है। दीज आर 1A। एंड जो टाइप 2 फाइबर्स होती है, इनकी फ्लावर स्प्रिंग एंडिंग होती है। इसका मतलब क्या है? सो एंडिंग वुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब एक और चीज, जो सेकेंड टाइप का फाइबर है, ये सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्स जो देगा उससे इनर्वेशन लेके जाएगा। और टू सिंप्लीफाई फर्दर वी कैन टेक अ लुक हियर। तो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स डायनेमिक फाइबर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर बैग फाइबर्स डायनेमिक फाइबर्स है। न्यूक्लियर बैग फाइबर्स डायनेमिक, और यू कैन लुक हियर, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स से एफरेंट मतलब ऊपर लेके कौन जा रहा है सेंसेशन? 1A फाइबर, और देता कौन है? ए गामा। ए गामा का भी टाइप 1, ठीक है। तो एफरेंट क्या है? 1A। और न्यूक्लियर बैग स्टैटिक से लेकर कौन जा रहा है? 1A एंड 2। ऐसे ही न्यूक्लियर चेन से कौन लेके जा रहा है? 1A और 2। लेकिन इन दोनों की मोटर सप्लाई क्या है? ए अल्फा ए गामा 2, ठीक है। ए गामा 2 और ए अल्फा किसकी होगी? एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स की। इतना क्लियर है? नाउ इट विल गेट मोर क्लियर व्हेन वी मूव फर्दर ऑन, ठीक है। डायनेमिक फाइबर्स दे डिटेक्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ. Dynamic fibers detect the rate of change of length, while the static fibers detect only steady length. Note that muscle spindle is the only receptor which has a motor supply via the A gamma fibers, while the motor supply to the extrafusal fibers is via A alpha fibers. To make it more clear, this is the diagram of a muscle spindle which I have taken from Genome. और इसमें देखो मसल स्पिंडल के डायग्राम में, दिस इज द आउटर कनेक्टिव टिश्यू, ये जिसे मैं So this is the outer connective tissue sheath which I am highlighting, ठीक है। outer connective tissue sheath के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इंट्राफ्यूजल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कौन से दिखा रखे हैं? न्यूक्लियर बैग फाइबर्स। सो कैप्सूल है, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं। देन यू आर हैविंग दी सेंसरी एंडिंग्स होती हैं। सेंसरी एंडिंग्स किसके थ्रू कैरी करेंगे? 1A या फिर 2 के थ्रू afferent axons, and the efferent supply would be via the A gamma, ठीक है, गामा मोटर न्यूरॉन एंडिंग्स, ठीक है। सो इसमें जो रेड कलर है ये efferent सप्लाई है, एंड द पिंकिश कलर दैट इज रेफरिंग टू द afferent न्यूरॉन्स। टेक अ लुक हियर आल्सो। डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर्स, इनके थ्रू afferent कौन कैरी कर रहा है? देखो सिर्फ एन्यूलोस्पाइरल एंडिंग्स है, सिर्फ टाइप 1A कैरी कर रहा है, जबकि मोटर डायनेमिक कौन सा है? ए गामा, ठीक है। अब बाकी स्टैटिक फाइबर्स, बीट न्यूक्लियर बैग स्टैटिक और न्यूक्लियर चेन, उनमें से जो एफरेंट सप्लाई है 1A और 2 दोनों कैरी कर रहे हैं, और इफरेंट इस बारी भी सिर्फ कौन सी है? ए गामा। क्लियर? इफरेंट का मतलब क्या है? these are responsible for the contractile response. Another difference between the extrafusal and the intrafusal fibers which I should make clear, ये कि एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता है थ्रू आउट, ठीक है। लेकिन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के अंदर
जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है वो सिर्फ एंड्स पे प्रेजेंट होता है. सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा? एंड्स में. एंड दैट इज द रीजन द एंड इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रेक्टाइल एंड और कॉन्ट्रेक्टाइल पोलर एंड. Contractile polar end. I have mentioned it here. It is the ends are containing the contractile proteins myosin and actin. Therefore, they are called contractile polar ends. और जो central portion है वो non contractile होता है. Clear? इससे होगा क्या? A gamma efferent neuron जो है जब वो fire करेगा तो जो ends है वो contract करेंगे. Ends contract करेंगे तो इससे क्या होगा? There would be stretching at the central portion. ठीक है. Now stretch reflex क्या चीज है? So remember stretch reflex एक monosynaptic reflex है. Stretch reflex is a monosynaptic reflex. What do you mean by the monosynaptic reflex? I mean that only a single synapse is involved. Monosynaptic से मतलब क्या है? एक ही synapse involved है. We'll see that also. Stretch reflex is also called as the deep tendon reflex या फिर इसे myotactic reflex भी कहते हैं. Is this much clear? Now this stretch reflex is the fundamental reflex which is involved in maintaining the body posture. लेकिन समझने के लिए हमें definition पता होना चाहिए. So what is the definition of a stretch reflex? So whenever a skeletal muscle with an intact nerve supply, I'm reading it, then I'll also explain. Whenever a skeletal muscle with an intact nerve supply is stretched, then it contracts. This is called stretch reflex. जब भी कोई muscle को आप contract करने की कोशिश करोगे, then what will happen to that muscle? It will, whenever a muscle will be stretched, तो होगा क्या? जो मसल स्पिंडल है वो एक्टिवेट होगा. मसल स्पिंडल एक्टिवेट होगा और एफरेंट्स जो है वो कौन कैरी करेगा? या तो 1A फाइबर या 2 फाइबर. ठीक है. 1A फाइबर सबसे लेके जाएगा ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स. 2 फाइबर्स सिर्फ उनसे लेके जाएगा विच आर देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैटिक रिस्पॉन्स. ये क्या है? ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन. तो सूडो यूनिपोलर होता है. उसके बाद ये एफरेंट सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर गया. अब ये एक ही साइनैप्स बनाएगा इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू. ठीक है. इफरेंट न्यूरॉन पे एक साइनैप्स बनाएगा एंड विच इज द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज? दिस इज द ग्लूटामेट. ग्लूटामेट इज एन एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर. तो रिलीज हुआ तो इसका मतलब क्या है? जो ए अल्फा न्यूरॉन है जिसके ऊपर ये साइनैप्स कर रहा है वो स्टिमुलेट होगा तो वो सेम मसल के ऊपर, इसी मसल से एफरेंट भी गया था, इसी मसल पे इफरेंट आया कि कॉन्ट्रैक्ट करो. तो हुआ क्या? जैसे आप जो हैमर है, रबर हैमर, व्हेन यू स्ट्राइक इट ऑन द पेटिलर टेंडन, तो उससे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल क्या है वो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी. सो मसल लेंथ इंक्रीजेस. दिस इज सेंस्ड बाय द मसल स्पिंडल. एफरेंट सेंसेशंस कैरी होगा और इफरेंट सेम मसल के पास आएगा और क्या होगा? रिस्पॉन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसलिए आपकी लेग मूव करेगी. ठीक है. सो विच इज द रिसेप्टर इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेच रिफ्लेक्स? इट इज द मसल स्पिंडल. So which is the receptor involved in the stretch reflex? It is muscle spindle. Afferent कौन कैरी कर रहा है? 1A या 2. सेंटर ऑफ साइनैप्स क्या है? स्पाइनल कॉर्ड. इफरेंट किसके थ्रू आ रहा है? ए अल्फा टू द सेम मसल. दिस इज इंपॉर्टेंट. टू द सेम मसल इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हम आगे रेसिप्रोकल इनहिबिशन देखेंगे और रेसिप्रोकल इनहिबिशन में हम देखेंगे कि सेम मसल नहीं होगा. सिंपली क्या मतलब है? इस मसल से अगर ये मसल स्ट्रेच हुई जा रही तो ये कहेगा अब स्ट्रेच मत हो, कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. और सेम मसल पे ही जाके इफरेंट कनेक्शन आ रहा है. रिस्पॉन्स क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन. और स्टार्ट में जो रिसेप्टर जो सेंस करता है वो क्या था? इंक्रीज इन मसल लेंथ. ठीक है. न्यूरोट्रांसमीटर एट द सेंट्रल साइनैप्स रिलीज. दिस इज द ग्लूटामेट. सो मसल स्पिंडल इतना क्लियर हो गया. नाउ यू कैन ऑल्सो लुक एट द डायग्राम. दिस इज अगेन अ फिगर फ्रॉम गेनोम. सो इसमें हम देखते हैं illustrating the pathways of the stretch reflex. We'll be talking about the inverse stretch reflex later. So stretch reflex पे अभी हम फोकस कर रहे हैं. देखो ये मसल है. मसल क्या हुआ? this is the afferent supply 1 alpha fiber from the muscle spindle दिया. पहले हम मसल स्ट्रेच हुई जा रही है. afferent कैरी किया और कहां पर आ गया? इस एंटी वेंट्रल हॉर्न में आ गया. और वेंट्रल हॉर्न पे किस पे जाके साइनैप्स कर रहा है? ए अल्फा मोटर न्यूरॉन पे. ए अल्फा मोटर न्यूरॉन कहाँ है? उसी मसल पे है. और कहाँ जाके जा रहा है? एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर पे. तो जैसे ही मसल स्ट्रेच हुई, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? व्हाट इज द रिस्पॉन्स? दैट इट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल.
दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अ स्ट्रेच रिफ्लेक्स. अब मसल स्पिंडल, हमने ए गामा फाइबर का रोल देखा ही नहीं. वी हैवंट येट सीन द रोल ऑफ द ए गामा फाइबर. सो व्हाट इज द रोल ऑफ द ए गामा फाइबर? तो मसल जो स्पिंडल है उसे मैं दो तरीके से एक्साइट कर सकती हूँ. पहला, सो मसल स्पिंडल है उसे मैं दो तरीके से एक्साइट कर सकती हूँ. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल पोलर एंड्स है एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेंट्रल पोर्शन. पहला कि स्ट्रेच हो रहा है, सेंस हुआ वन ए फाइबर से, वन ए फाइबर्स के थ्रू ए अल्फा के पास आया और मसल कॉन्ट्रैक्ट की. दूसरा तरीका क्या है कि ए गामा फाइबर आ रहा था एंडिंग से. ए गामा फाइबर भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब इफेक्टर न्यूरॉन है ना, इफ्रिन न्यूरॉन है ना. तो इसका मतलब अगर मैं ए गामा न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दूं तो कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, तो जो पोलर एंड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इससे क्या होगा, मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगा. मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगा, फिर से सेम स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑपरेट होगा और एट द एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली मैं मसल को स्ट्रेच करूं और उससे फाइनली क्या हो, पूरा स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो और ए अल्फा के थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स हो. दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्टली मैं स्टिमुलेट करूं ए गामा मोटर न्यूरॉन को. ए गामा मोटर न्यूरॉन में इतनी कैपेसिटी नहीं है और यू कैन से इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि स्किन कॉन्ट्रैक्ट करने से पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करे. ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सेंट्रल पोर्शन पे स्ट्रेच होगा, which will initiate the stretch reflex. So this is what I have written here, that muscle spindle that can be stimulated in two ways. Either a direct stimulation, you increase the muscle length, तो muscle contract होगी, या फिर indirect stimulation, you increase the A gamma motor neuron discharge, जिससे reflex फिर से initiate होगा. ठीक है, कैसे? Increase in the, sorry for the, yes, now increase in the A gamma motor neuronal discharge at the ends of the intrafusal fibers. क्या करेंगे, stretch of the central portion cause करेंगे, जिसकी वजह से stretch reflex stimulate होगा and at the last muscle contraction होगी. This was about the stretch reflex. अब और क्या है, A gamma motor neuron discharge, ये कंट्रोल कौन करेगा? We have seen कि A gamma motor neuron discharge भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टू स्टिमुलेट दी स्ट्रेच रिफ्लेक्स, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करेगा? तो ए गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज को इनहिबिट करते हैं सेंटर्स कौन से, इधर द मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, जो मेड्यूला में सिचुएटेड है, वो इनहिबिट करेंगे, या फिर कॉर्टेक्स से भी इनहिबिटरी रोल आते हैं, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया. ठीक है, या फिर और फैसिलिटेट कौन करते हैं, पॉन्टाइन सेंटर्स, जिसमें पॉन्स के अंदर अगर जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है वो एक्साइटेटरी रोल प्ले करता है, एंड द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. ठीक है, अब इसका जो सिग्निफिकेंस है दैट इज अबाउट द मसल टोन. ठीक है, मसल टोन, और हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी उसका नोट करेंगे. मसल टोन क्या होती है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मसल टू स्ट्रेच. It is a state of partial contraction which depends on the A gamma motor neuronal activity and stretch reflex. A gamma motor neuron अगर मैं stimulate करूं तो मसल contract करी थी indirectly. इसका मतलब मसल को स्ट्रेच करने के लिए रेजिस्टेंस आ गई. दिस इज द मसल टोन. सो मसल टोन किस पे डिपेंड करता है? ए गामा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी. मतलब जो सेंटर्स फैसिलिटेट कर रहे हैं ए गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को, दे विल इंक्रीज द मसल टोन, while on the other hand those centers which are inhibiting the A gamma motor neuron discharge, these will definitely inhibit the muscle tone. तो इसीलिए जब बेसल गैंग्लियन के लीजन्स होते हैं तब क्या होता है, इनहिबिटरी कंट्रोल चला गया, इसका मतलब मसल टोन बढ़ जाएगा. मसल टोन बढ़ने की वजह से देयर इज द रिजिडिटी. रिजिडिटी कब सीन कब होगी? जैसे इन पार्किंसंस. ठीक है, लेड पाइप रिजिडिटी होती है, और इन अदर कंडीशंस आल्सो स्पास्टिसिटी या रिजिडिटी हो सकती है. क्यों? क्योंकि इनहिबिटरी कंट्रोल दैट इज लॉस्ट. इतना क्लियर हो गया? एंजाइटी के अंदर, इन सब चीजों के अंदर फैसिलिटेटरी सेंटर्स stimulate हो जाएंगे. as a result the muscle tone that increases, or the sensitivity towards the stretch reflex that is going to increase. Now what are the mechanisms to regulate stretch reflex? Stretch reflex को control कैसे कर सकते हैं? पहला, reciprocal innervation. दूसरा, inverse stretch reflex. What is reciprocal innervation? I can demonstrate it here only. ये क्या हुआ, afferent गया,
सिंपल है, एक यहाँ से इस मसल से एफरेंट गया और इसी मसल पे आके कॉन्ट्रैक्शन हुई। लेकिन अगर ये वाला न्यूरॉन एक इनहिबिटरी न्यूरॉन पे भी साथ में स्टिमुलस दे दे और वो इनहिबिटरी न्यूरॉन जाके उस मसल पे इनहिबिटरी कंट्रोल दे जो इसकी एंटागनिस्ट हो, जो इसकी एंटागनिस्ट हो, उससे क्या होगा, ये वाली मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेकिन साथ वाली मसल जो है रिलैक्स करेगी। ठीक है, इस केस में ऐसा होगा। लेकिन जो रिवर्स जो कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन होगा, उसमें एंटागनिस्ट मसल की स्टिमुलेशन होगी। ठीक है, अब second is the inverse stretch reflex. Now inverse stretch reflex is an important again reflex which is mediated by the second group of receptors जो हमें आज पढ़ना है, the topic for our discussion, that was the Golgi tendon organ. Golgi tendon organ important था, it mediates the inverse stretch reflex. तो inverse stretch reflex क्या है, ये जैसे कि जो stretch reflex है that was monosynaptic reflex, the inverse stretch reflex on the other hand this is a bisynaptic reflex, which means it is involving the two synapses. I have not mentioned here, so you write that. Now let us look at the definition. तो हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या हो रहा था कि मसल लेंथ बढ़ रही है और एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब कॉन्ट्रैक्शन होगी बट किसी लिमिट तक होगी कॉन्ट्रैक्शन, नहीं तो जो इंक्रीज टेंशन है मसल की उसे मसल को हर्ट कर देगी। दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो लेट अस रीड। Up to a point, the harder the muscle is stretched, stronger is the reflex contraction. However, when the tension becomes great enough, contraction ceases and the muscle relaxes. This relaxation in response to a strong stretch is called the inverse stretch reflex. तो हुआ क्या, there was a stretch reflex we talked about and there is an inverse stretch reflex. So कॉन्ट्रैक्शन करवाते जाओ, कॉन्ट्रैक्शन कर सॉरी मसल लेंथ इंक्रीज करो तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। किस एक पॉइंट तक ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, टिल दैट पॉइंट मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, टिल दैट थ्रेशोल्ड पॉइंट। नाउ फर्दर ऑन इफ दैट पॉइंट इज रीच्ड और उसके बाद मसल के कॉन्ट्रैक्शन से हार्म हो रहा है तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्दर द मसल इंस्टेड रिलैक्सेस। सो अगर मसल लेंथ इंक्रीज होने से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स होगा जिससे मसल रिलैक्स कर जाएगी। This is the inverse stretch reflex and the receptor for this is Golgi tendon organ. जो Golgi tendon organ क्या है, net like collection of knobby nerve endings which lie in series with the extrafusal fibers. The muscle spindle that was lying in parallel with the extrafusal fibers, जबकि Golgi tendon organ tendon के अंदर है इसलिए it lies in series. So I have a figure of Golgi tendon organ here. So we can look here. This is a Golgi tendon organ. This is an organ which is a receptor for inverse stretch reflex, consists of a net-like collection of knobby nerve endings amongst the fascicles of a tendon. Innervation यहाँ पर कौन सी है, group 1B fibers of myelinated fibers. Innervation in the stretch reflex muscle spindle की afferent supply क्या थी, 1A and 2, लेकिन Golgi tendon organ की afferent supply कौन सी है, 1B. This is another important point to note the difference. So muscle spindle के अंदर जो एफरेंट था वो 1A या फिर 2 फाइबर्स कैरी कर रहे थे, वर्सेस जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है उसकी जो एफरेंट है वो कौन कैरी करेगा, 1B. इसमें ना 2 का कोई रूल नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दी, यस वी हैव नॉट सीन द रिसेप्टर्स एंड ऑल. So receptors for Golgi receptor for the inverse stretch reflex is the Golgi tendon organ. Stimulus is again increase in muscle tension. Afferents carried by 1B. Center for relay is spinal cord. Efferents same है, efferent extrafusal पे जाएगा और efferent extrafusal का हमेशा कौन सा होता है, alpha motor neuron. And the response is muscle relaxation. ठीक है, so now let us see this and understand.
टेंडन के अंदर क्या है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि इंक्रीज मसल टेंशन सेंस करेगा एंड द एफरेंट्स वुड बी कैरिड बाय द 1B फाइबर्स. कहाँ जाएंगे, अगेन स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और वेंट्रल हॉर्न में स्टिमुलेट करेंगे. इनहिबिटरी रिले किस पे करेंगे, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स पे, और इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स फाइनली किस पे रिले करेंगे, the efferent supply to the extrafusal fibers which is the A alpha. और क्योंकि ये इनहिबिट हो गए इसलिए द रिस्पॉन्स इज मसल रिलैक्सेशन. ठीक है, so please note that here there are two synapses involved, 1 and 2. So inverse stretch reflex is bisynaptic type of reflex, जबकि stretch reflex that was monosynaptic type of reflex. So in conclusion to the I'm concluding this video by the differences between the muscle spindle and the Golgi tendon organ. ठीक है, muscle spindle stimulation, increase in muscle length will cause the muscle contraction, but increase in muscle tension would cause the muscle relaxation. इसलिए muscle spindle, this is called as a stretchometer, जबकि Golgi tendon organ, this is called as a tensometer, muscle tension sense करेगा, ये muscle stretch sense करेगा. Afferents muscle spindle के कौन कैरी करेगा, 1A फाइबर या 2 फाइबर, और afferents Golgi tendon organ से 1B फाइबर्स करेंगे. This is a example of monosynaptic reflex, monosynaptic होता है, और inverse stretch reflex is an example of bisynaptic reflex. So this was all about my video, guys, and thank you, and please do like, share and subscribe to the channel, and I'll be coming up with more videos. Thank you.